Hello students, how are you? Hope you are all fine. And just I am here binomial theorem chapter of class 11, and I think it is the fourth lecture from the binomial theorem. And I think in the last three lectures we had discussed various concepts and various questions regarding this binomial theorem, and we had solved various questions, and very important some questions were very important for the board standard, and just some questions were very important for clearing the concepts as well. Okay, so in this lecture we will solve some very important questions for the board level exams, that means for the final exams, which are very important. And I think in the board exam, in the final exam, at least one question used to will come. Okay, so you should concentrate on these lectures properly. Okay, so just write the question. Show that the middle term of the expansion, show that the middle term, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कल, लास्ट क्वेश्चन जो है 1 into 3 into 5 dot 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 twice n minus 1 फिर डिवाइड बाय फैक्टोरियल n into twice 2 to the power n into x to the power n. ठीक है, उसी टाइप के सेम क्वेश्चन, बट द एक्सपेंशन विल बी डिफरेंट. देखो, show that the middle term in the expansion, show that the middle term in the expansion, show that the middle term in the expansion, okay, in the expansion, x minus 1 by x whole to the power twice n is x minus 1 by x whole to the power twice n is 1 into 3 into 5 into dot 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 twice n minus 1 whole by factorial n into 2 to the power n. No x to the power n is there, that means minus 2 to the power n. Minus 2 to the power n. No x to the power n is there. So this here you can see only the expansion is different, but the rest of the part are same. Okay. So here just you need to find the middle term. So this middle term, number of middle terms कितना होगा? That means बीच का जो terms यहाँ पर कितना होगा? ये जो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है पावर के ऊपर. पावर जितना है उससे एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म्स. यहां पर पावर कितना है गिवन एक्सपेंशन में? पावर है ट्वाइस n. सो लिखो हियर गिवन x minus 1 by x whole to the power twice n, where पावर ट्वाइस n, और ये इवन होता है. सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू पावर से एक ज्यादा होता है. दैट मीन्स इवन नंबर के साथ अगर 1 ऐड किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलता है. ठीक है, ऑड नंबर. दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर ऑड आ रहा है. दैट मीन्स नंबर ऑफ मिडिल टर्म विल बी 1. सो नंबर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू 1, एंड दैट इज मिडिल टर्म. कैसे निकालते हैं? एक मिडिल टर्म निकालना है ना, एक ही होगा. नंबर ऑफ terms plus 1 by 2th term, and that will be the middle term. So that means twice n plus 1 by 2 2th term, that is n plus 1th term. I think n plus 1th term. So this term will be the middle term of this given expansion. So t n plus 1, ये तो ऑलरेडी प्लस 1 फॉर्म में है. देखो पूरा पिछला क्वेश्चन जो है उसके तरह ही जा रहा है.
यहाँ पर +1 फॉर मी तो है, तो यहाँ पर और क्या ऐड करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अब NCR दैट मीन्स ट्वाइस NCN पावर CN, फिर x टू द पावर ट्वाइस n माइनस n एंड -1 by x होल टू द पावर n, ठीक है, -1 by x होल टू द पावर n। सो दैट मीन्स ट्वाइस NCN x to the power n and -1 by x to the power n, x to the power n, x to the power n कैंसिल। तो बाकी सिर्फ रहेगा, ये क्वेश्चन लिख रखो, बाकी क्या रह गया, ओनली दिस टर्म इज लेफ्ट। ओके, सो जस्ट Tn plus 1 equals to twice NCN, सामने एक माइनस रहेगा, बस ओनली दिस टर्म इज लेफ्ट। सो माइनस सामने रहेगा, हम लोग कैसे तोड़ते हैं याद है, फैक्टोरियल ट्वाइस n बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, फिर माइनस अपनी जगह में रहेगा। फैक्टोरियल ट्वाइस n को कैसे तोड़ते हैं, ट्वाइस n माइनस 1, ट्वाइस n माइनस 2, ट्वाइस n माइनस 3, ओके, एंड डॉट 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 5 4 3 2 1 होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। ऐसे ही तो करते थे लास्ट क्वेश्चन में, तो ऐसे ही किया है शायद। सो माइनस ये जो माइनस है, अच्छा ठीक है, तो यहां पर इवन नंबर जितना सा है, इवन नंबर्स को लोग की एक सीरीज बनाएंगे, इवन नंबर्स को लेके एक सीरीज और ऑड नंबर्स को लेके एक सीरीज, ठीक है, ऐसे ही तो किया था हम लोगों ने। फिर फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ये जो इवन नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, दैट मींस ये सिर्फ इवन नंबर्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2 है, तो मैंने बोला था कि हर एक टर्म से अगर एक 2 उधार लिया जाए तो यहाँ पर दैट मींस 2 टू द पावर n आएगा, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 1। इधर तो एज इट इज वही 2 n, अच्छा यहाँ पर उसको अगर मैं ठीक तरह से लिख लूं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 ट्वाइस n माइनस 1, ठीक है, बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। तो ये जो है ये फैक्टोरियल n ही है, ये फैक्टोरियल n ही है, और ये जो है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू ट्वाइस n माइनस 1 होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। ये कैंसिल, और ये जो माइनस है ना उसको ऐसे, ये n यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर ये जो ट्वाइस n है ना, यहां पर पावर क्या है, पावर क्या है, यहां पर क्या प्रूफ करना है, -1 टू द पावर n, ठीक है, ये जो है ना माइनस, इसको -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, ठीक है। उसमें क्या था, ऐसा था ना कि -1 टू द पावर n, ठीक है, उसको ऐसे ही रखना है। अब दोनों मिला के -2 टू द पावर n, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू ट्वाइस n माइनस 1 बाई n, ठीक है, ठीक है। ये जो -1 टू द पावर n, उसमें वो -1 बाई x होल टू द पावर n था ना, तो वो माइनस के ऊपर भी तो पावर n है, तो दैट मींस -1 होल टू द पावर n, ये आपको लिखना पड़ेगा, हर जगह लिख लो, ठीक है, बाद में प्रूफ के टाइम जरूरत होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, find the coefficient of x to the power 32 and x to the power -17
find the coefficient of, next question, find the coefficient of find the coefficient of x to the power 32 and x to the power minus 17 in the expansion x to the power 4 minus 1 by x cube whole to the power 15 whole to the power 15. So find the coefficient of x to the power 32 and x to the power minus 17 in the expansion. One expansion is given and you need to find the coefficient of x to the power 32 and x to the power minus 27. So I think like this question, we had solved one question I think in the last lecture. Okay, and we had discussed about the process of this type of questions. Okay, so how can you solve this type? How can you find the coefficient of something? Okay, two processes are there. One process is formal process, that you can expand this whole part by using this binomial theorem. Expand करो पूरा formula. Okay, ये भी कर सकते हो. One shortcut process is also there, and that was discussed also, and using that discussion we had solved one question also. Okay, just see the last lecture, you will get the idea. Those who are not actually attending the classes regularly, okay, so just try to attend the classes regularly, because all the classes are correlated with each other. Okay, if you are not attending the last lecture, then I think in the next lecture you will not get the idea what is going on, and all the concepts and all the things will be mixed up, okay, in your mind. So just it will be better if you see the last lecture first actually, and just go to the next lecture consecutively, okay, not suddenly. So here given x to the power 4 minus 1 by x cube whole to the power 15, ये एक्सपांशन है. ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू क्या है 15. फर्स्ट टर्म यहाँ पर x टू द पावर 4 है. सेकंड टर्म यहाँ पर 1 बाई एक्स क्यूब है. नहीं, माइनस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है नहीं? तो दैट मींस आपको ऐसे इसको x टू द पावर 4 प्लस minus 1 by x cube and this whole power 15. Now you need to find the coefficient of x to the power 32. Let x to the power 32 is present. Okay, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं in r plus 1 term. ठीक है, हम लोग r plus 1 टर्म में x to the power 32 प्रेजेंट है, वो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है. Now let us find the r plus 1 term. r plus 1 term क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से. ठीक है, so t r plus 1 क्या होगा, ये तो r ये होगा NCR मतलब क्या है, n मतलब 15CR. x to the power 4, it is the first term, 15 minus r. Second term 1 by x cube whole to the power r. ठीक है, तो इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं 15CR x to the power 60 minus 4r minus 1 to the power r and 1 by x to the power 3r. So that means 15CR x to the power 60 minus ये x to the power 3 जो है वो अगर मैं ऊपर ले लूं पावर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड होने से तो पावर माइनस होता है. तो ये 3r minus 1 to the power r. 15CR x to the power 60 minus 7r
minus 1 to the power r, and according to the question, according to the assumption actually, this should be x to the power 32, x to the power 32, because we had assumed that in the r plus 1th term x to the power 32 will be present, but how is it possible that x to the power 60 minus 7 is coming? So that means this term signifies that x to the power 60 minus 7r and x to the power 32 basically they are सेम. ठीक है, मैंने बोला था कि x to the power 32 तो यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पर आपका आया क्या, x to the power 60 minus 7r. So that means x to the power, तो ये आपको ऐसे मतलब so x to the power 60 minus 7r और x to the power 32 दोनों एक्चुअली सेम है. ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर पावर को सेम लिख लेंगे 32, that means 7r equals to 28, that means r equals to 4. R equals to what? 4. Now it is your equation number 1. Now place this value r equals to 4 in this equation number 1. You will get x to the power 32 and also you will get the coefficient of x to the power 32. Now from 1, just write the statement. So from 1. From 1. From 1 क्या होगा, t r plus 1 है ना, that means 4 plus 1, 15c4 x to the power 60 minus 7 into 4 and minus 1 to the power 4. 15c4 into x to the power 10 ही 32 होगा, 32 और ये minus 1 to the power 4 प्लस ही हो जाएगा. आ गया ना, देखो x to the power 32. So कोफिशिएंट क्या रहा है यहाँ पर, so कोफिशिएंट क्या रहा है 15c4. किसका कोफिशिएंट, x to the power 32 का कोफिशिएंट. ठीक है. Similarly you can find x to the power minus 17 coefficient also. Okay, so that will be your homework. Just similarly your duty is to find the coefficient of x to the power minus 17. Just use this process, just like this process, whatever actually was there, that means whatever the calculation was there, the same thing will be repeated. Just it will be your homework. Just find the coefficient of x to the power minus 17 and let me check whether you have got the idea or not. Okay, now next question now. Find the coefficient of x to the power 40 in the expansion. Find the coefficient of x to the power 40 in the expansion of x to the power 40 in the expansion of next. Find the coefficient of x to the power 40 in the expansion of x to the power 40. Find the coefficient of x to the power 40 in the expansion of 1 plus twice x plus x square, 1 plus twice x plus x square whole to the power 20, whole to the power 27, whole to the power 27, and you need to find the coefficient of x to the power 40. So given expansion is 1 plus twice x plus x square whole to the power 27.
So I think as so far I know, this term is the formula actually, a plus b whole square. 1 plus x whole square का फॉर्मूला क्या बनता है? 1 plus twice x plus x square. Do you remember that? 1 plus twice x plus x square. Okay, तो ये फॉर्मूला है. 1 plus twice x plus x square जो है ये एक फॉर्मूला होता है. That means 1 plus x whole square का फॉर्मूला है. ओवरऑल तो आपके पास ये 27 तो ऊपर है ही. तो 1 plus x whole to the power I think 54. So it is the real expansion. Let किसका कोएफिशिएंट निकालना है? Let x to the power 40 is present in where? R plus 1th term. So t r plus 1 equals to 54 cr, फिर 1 to the power 54 minus r, x to the power 54 minus r, sorry, x to the power r, x to the power r. Only this thing, x to the power 40 present है कहां पर? R plus 1 term में. So according to this given expansion, which was already rearranged in the simplest form, 1 plus x whole to the power 54. ठीक है? tr plus 1 equals to 54 cr, 1 to the power 54 minus r and x to the power r. Okay, so here it is your equation number 1. Here x to the power r यहां पर आया, बट आपका आना चाहिए x to the power 40. So that means r equals to क्या है? 40 आ रहा है. r equals to क्या आ रहा है? 40 आ रहा है. So that means from 1 t 40 plus 1 54 c 40, 1 to the power 54 minus 40 and x to the power 40. So I think this part is 1. 54 t 41 आ रहा है, 54 c 40 and x to the power 40. So कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर? x to the power 40 का कोफिशिएंट 54 c 40. So just write the statement. So coefficient of x to the power 40 is 54 c 40. That is the answer, final answer. Okay? This type of questions actually are very, very important. Okay, for the board level exams. Next, find the term independent of x in the expansion. Find the term independent of x. थोड़ा हटके क्वेश्चन है. Find the term independent of x in the expansion. कौन सा एक्सपांशन है? 3x square minus 1 by 2 x cube whole to the power 10. ये एक्सपांशन है. And find the term independent of x in the expansion of this. That means ये given expansion है. And now you need to find the term which is independent of x. What do you mean by independent of x? मतलब है, क्या मतलब बनता है ये independent of x का? That means आपको ऐसा ही टर्म निकाल के दिखाना है जिसमें x है ही नहीं. Independent of x means what? x है ही नहीं, मतलब x रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 40 निकाल के हम लोगों ने देखा है कि कोफिशिएंट क्या है. और यहां पर बोला गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब
x है ही नहीं, दैट मीन्स x टू द पावर 0। वहां पर कोफिशिएंट किसका निकालना था, x टू द पावर 40। लास्ट क्वेश्चंस में x टू द पावर 40 का, x टू द पावर -17 का, x टू द पावर दिस, x टू द पावर दिस। बट यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये जो बात है x टू द पावर 0 सेम चीज है, याद रखना। ये इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 का आंसर कितना होता है, 1। कितना होता है x टू द पावर 0 का आंसर, 1। So that means independent of x means x to the power 0। मरते दम तक याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन 3x square minus 1 by 2x cube whole to the power 10। Okay, let r plus 1th term, प्रोसेस एक ही तरह जाएंगे, r plus 1th term is independent of x। ठीक है, सो t r plus 1 निकालेंगे, 10cr 3x square whole to the power 10 minus r minus 1 by 2x cube whole to the power r। ये तो r plus 1th टर्म है, तो उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। 10cr 3 to the power 10 minus r x to the power 2 into 10 minus r और minus 1 to the power r 1 by 2 to the power r x to the power 3r। So 10cr 3 to the power 10 minus r x to the power 20 minus twice r minus 3r। ठीक है, ये टर्म भी है ना नीचे, इनटू minus 1 to the power r और इधर नीचे by 1 by 2 to the power r, ऐसा भी है। ठीक है, तो यहां पर जो है एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन रहा है, एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, देखो 10r plus 1 10cr 3 to the power 10 minus r by 2 to the power r into कैलकुलेशन थोड़ा वेरीफाई कर लेना, 20 minus 5r एंड माइनस 1 टू दी पावर r। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस 1 टू दी पावर r को एकदम सामने लिखकर रखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, दैट मींस x टू दी पावर 0 आना चाहिए, बट यहां पर आपका क्या आ रहा है, दिस। सो x टू दी पावर 20 माइनस 5r एंड x टू दी पावर 0 दोनों सेम है। दैट मींस दोनों को अगर मैं सेम लिखूं, r equals to 4 आ रहा है शायद, just put the value of r in equation number 1। so from 1 क्या रहा है, t 5 minus 1 to the power 4 10c4 3 to the power 10 minus 4 2 to the power 4 and x to the power 0। Agree? Just do it। So do the calculation here। t5 minus 1 to the power 4, even number power है तो minus से absorb, 10c4 3 to the power 6 by 2 to the power 4 into, तो यहां पर देखो t5 10c4 3 to the power 6 2 to the power 4। ठीक है, हाँ, तो यहां पर उसको कैलकुलेशन करके देख लो, 10c4 मतलब यहां पर क्या होगा, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 3 टू द पावर 6 मतलब 3 to the power 6 मतलब 27 into 27 by 2 to the power 4 मतलब 16। तो उसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल
बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। 27 इंटू 27 बाई 16, दैट मीन्स 2 5 4 2, okay, and this 3 3 are 9, नीचे और कुछ बाकी नहीं है। यहाँ पर एक 16 है, 16 को हम आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से ये 8, ठीक है। तो ऊपर क्या बन रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 27 इंटू 27 बाई 8 इसका कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो, ठीक है। कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, दैट विल बी, मतलब ये जो ऊपर का जितना सारा टर्म्स है मल्टीप्लाई मारो बाई 8 रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर मेन थिंग इज दैट independent of x means x to the power 0. The process will be same, okay. Now in the binomial expansion, in the binomial expansion 1 plus a whole to the power m plus n, in the binomial expansion in the binomial expansion in the binomial expansion 1 plus a whole to the power m plus n, ठीक है। prove that coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। एक्सपेंशन तो यहां पर दिया गया, गिवन 1 plus a whole to the power m plus n। So now coefficient of a to the power m। अच्छा देखो तो यहां पर एक चीज, जैसे 1 plus x whole to the power n होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है कि अगर r plus 1 निकाले तो क्या होता है, NCR, मतलब ये NCR फिर 1 to the power n minus r h to the power r, that means x क्यूब और पावर जो है वो कौन सा रहता है, जो ये है r है क्या नहीं, that means ये r plus 1, that means ये जो r है ना वही जाके x क्यूब और पावर रहता है। सो यहां पर जो है कोफिशिएंट ऑफ a to the power m, that means a भी यहां पर सेकंड टर्म है, x भी यहां पर सेकंड टर्म था। सो दैट मीन्स a के ऊपर पावर जो रहेगा वो MCR, दैट मीन्स यहां पर n के जगह तो m प्लस n है, इज देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, m प्लस n c m। देखो यहां पर कंपेयर करें दोनों में, ये m प्लस n और यहां पर n, ठीक है। तो n के जगह ये आएगा और m प्लस 1 ये आएगा, पावर के जगह पावर आएगा। फिर c, यहां पर देखो यहां पर r है, यहां पर क्या है r, इसलिए x टू द पावर r। तो यहां पर जो है a टू द पावर m है, दैट मींस m c r के जगह क्या आना चाहिए, m आना चाहिए, तो वही हम लोगों ने लिख दिया m प्लस n c m, ठीक है। फिर सिमिलरली मुझे बोलो तो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n क्या होगा, सेम देखो क्या होगा, a के ऊपर पावर जो रहेगा सेकंड टर्म होना चाहिए, याद रखना। a अगर यहां पर ऐसा होता तो ये सेटिस्फाई नहीं होता,
सेकेंड टर्म जो अगर रहे आपके पास, सेकेंड टर्म के ऊपर अगर पावर जो होगा, सेकेंड टर्म जो भी रहे उसके ऊपर पावर जो होगा वही नीचे आएगा। मतलब वो जब आप लिखेंगे ना सी समथिंग कॉम्बिनेशन पार्ट वाला जो लिखेंगे, नीचे वाला पार्ट वही आएगा, ऊपर वाला पार्ट तो जो पावर है वही आएगा। दैट मींस पावर कितना है, m प्लस n लिख लिया, ये है कॉम्बिनेशन पार्ट c लिख लिया, नीचे कौन सा आएगा, a के ऊपर पावर जो रहेगा c। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये दोनों जो है कोफिशिएंट क्या सेम है, ये दोनों कोफिशिएंट सेम है क्या, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने कल एक कॉम्बिनेशन पार्ट में एक चीज बताया था, ये m प्लस एन सी, m है ना, उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं m प्लस एन माइनस n। मैंने ऐसा बोला था ना कि n सी r और n सी n माइनस r दोनों एक ही बात है, बोला था ना मैंने। यहां पर अगर मैं देखो यहां पर अगर मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूं, m प्लस n माइनस m, m कैंसिल, तो क्या आ रहा है m प्लस n c n आ रहा है। सिंस लिख के एक काम करो, उसको सिंस ऐसे लिखो, सिंस n c r इक्वल्स टू n c n माइनस r, ये हम लोग जानते हैं। सो m प्लस n c m, उसको हम लोग यूजिंग दिस फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, m प्लस n c, m की जगह m प्लस n माइनस m, m कैंसिल, दैट इज m प्लस n c n लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स m प्लस n c m और m प्लस n c n दोनों एक ही बात है। तो ये किसका था, ये कोफिशिएंट किसका है, a टू द पावर m का, ये कोफिशिएंट किसका है, a टू द पावर n का। सो both the coefficients are same. So just write the last statement. So the coefficient of a to the power m equals to coefficient of a to the power n, both are equal है। Okay, फिर if the coefficients of, next question जाओ, if the coefficients of if the coefficients of r minus 1, r minus 5th term and 2r minus 1 term, okay, in the expansion 1 plus x whole to the power 34, 1 plus x whole to the power 34 are equal, then find r, r का वैल्यू आपको निकालना है। दैट मीन्स एक एक्सपेंशन है, देखो गिवन 1 plus x whole to the power 34, it is the given expansion. Now according to the question, r minus 5th term and 2r minus 1th term are equal. So at first हम लोगों को सबसे पहले r minus 5th term and 2r minus 1th term, ये दोनों टर्म इंडिविजुअली निकालना है, अलग अलग करके मुझे निकालना है। निकालने के बाद दोनों को इक्वल लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया दे आर इक्वल। इक्वल मिलने के बाद
एक इक्वेशन आपको मिलेगा, वो इक्वेशन यूज करके आप आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आओ ये है एक्सपांशन। नाउ कौन सा, टी आर माइनस 5, ओके, आर माइनस 5 टर्म, तो टी आर माइनस 5। अब यहां पर तो ऐसे नहीं होता है, क्लास 1 फॉर्म में रहना चाहिए, अब क्लास 1 तो है नहीं। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस आर माइनस 5 इन द क्लास 1 फॉर्म। कैसे, देखो टी आर माइनस 6 प्लस 1, देखो तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, अब क्लास 1 फॉर्म में तो आ गया है कि नहीं। अब आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पावर क्या है 34 सी आर, आर की जगह आर माइनस 6, फर्स्ट टर्म 1 टू द पावर 34 माइनस आर माइनस 6, फिर x टू द पावर आर माइनस 6। ठीक है, सिमिलरली वो 2r माइनस 1 टर्म, दैट मीन्स t 2r माइनस 1, यहां पर भी देखो क्लास 1 तो नहीं है, अब इसको सजाएंगे कैसे, 2r माइनस 1 है ना, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, देखो माइनस 1 होता है, जस्ट माइनस, वहां पर जैसे माइनस 5 को तोड़ के मैंने माइनस 6 प्लस 1 लिखा, क्योंकि मुझे प्लस 1 लाना था, आई वॉज बाउंड। यहां पर भी सेम, माइनस 2 को तोड़ के, सॉरी माइनस 1 को तोड़ के मैंने माइनस 2 प्लस 1 लिखा, क्योंकि मुझे प्लस 1 चाहिए। तो यहां पर भी सेम 34 सी 2r माइनस 2, 1 टू द पावर 34 माइनस 2r माइनस 2, x टू द पावर 2r माइनस 2, ये दोनों कोफिशिएंट्स दैट मींस टर्म्स आपको मिल गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो बोला गया है कि टी आर माइनस 5 और टी 2r माइनस 1 दोनों सेम है, इक्वल है, तो इक्वल लिखेंगे 34 सी आर माइनस 6, 1 टू द पावर, अच्छा ये 1 टू द पावर जो भी है, आंसर तो 1 ही है? तो यहां पर लिखना जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है लिखना, छोड़ दो। तो यहां पर सिर्फ x टू द पावर r माइनस 6, 34 c 2r माइनस 2, x टू द पावर 2r माइनस 2, ये ठीक है। यहां पर क्या है, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, मतलब कोफिशिएंट्स इक्वल है, दैट मीन्स ये जो x निकला है ना, ये x को भी नहीं लिखना है, कोफिशिएंट्स सेम है सिर्फ, दैट मीन्स कोफिशिएंट तो x के साथ जो रहता है वही कोफिशिएंट होता है, तो x को इन्वॉल्व करना यहां पर जरूरत है नहीं। अब कॉम्बिनेशन पार्ट में एक कॉन्सेप्ट है, अब एक जो है एक कॉन्सेप्ट लिखो यहां पर, ये कॉन्सेप्ट जो है जरूरत होगा, ठीक है, नोट देके लिखो, नोट इफ NCR इक्वल्स टू NCP, अगर दोनों सेम हुआ तो वहां से आइदर R इक्वल्स टू P, R इक्वल्स टू P ऐसा आएगा, और R प्लस P इक्वल्स टू N ऐसा आएगा। दो कंडीशन है कि नहीं, अगर ये दोनों सेम है तो वहां से दो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलेगा। यहां पर भी देखो इस स्ट्रक्चर का ही है, n यहां पर n की जगह 34 है, सो यहां से दोनों मिला के देखो, ये ब्रैकेट में रख दो, ये नोट यूज करके यहां से दो केस मिलता है, एक है r माइनस 6 इक्वल टू ट्वाइस r माइनस 2, और r माइनस 6 प्लस ट्वाइस r माइनस 2 इक्वल्स टू 34, ठीक है। अब r का दो वैल्यू यहां पर मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, तो यहां से देखो r का वैल्यू माइनस r प्लस 4, दैट मीन्स r इक्वल्स टू माइनस 4। अरे यहां पर ये
r इक्वल्स टू -4। r मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी चीज का क्वांटिटी नेगेटिव आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो r इक्वल्स टू -4, ब्रैकेट में लिखो नॉट पॉसिबल। r का वैल्यू -4 नहीं हो सकता है। इसको करके देखते हैं, r का वैल्यू क्या मिलता है? 3r -8 और इधर 34, 3r 42। That means r equals to 14। हाँ, it is the perfect value, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स है, किसी न किसी, दैट मीन्स पूरा होल नंबर ऑफ टर्म्स है सब मिला के। और n जो है वो भी तो नंबर ऑफ टर्म्स ही है, बट लिमिटेड, ठीक है ना। जैसे n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से ही मैंने कुछ टर्म्स सिलेक्ट किया है, तो वो भी तो क्वांटिटी है ना, तो नेगेटिव कैसे आ सकता है वहां से? इम्पॉसिबल। सो r का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता है, ब्रैकेट में ऐसे लिख दोगे नॉट पॉसिबल। r का वैल्यू 14 आ रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, और ये हम लोग कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो ये हम लोग देखेंगे, इलेबोरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्व भी है, तो ये दोनों लिख के रखो, नोट से लिख रखो। ये केस कब पॉसिबल है? जब n सेम होगा, n दैट मींस ये पावर वाला पार्ट सेम होना चाहिए, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अदर देन दैट यू कांट यूज दिस फॉर्मूला, ओके। फिर उसके बाद दैट मींस ये जितना सारा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट्स आपको मिला है वो सब जो है लिख के रखो, है साइड में एक मतलब फेयर में ठीक तरह से लिख के रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक consecutive terms of 1 plus x whole to the power n। If, just write the question, if the 3 consecutive term of 1 plus x whole to the power n are in the ratio 1:7:42, find n। फाइंड n का वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। दैट मींस दिस एक्सपेंशन 1 plus x whole to the power n and 3 consecutive terms, एक के बाद एक आपको 3 टर्म चूज करना है। अब कहां से 3 टर्म चूज करना है? नॉट गिवन। कहां से आपको ये 3 टर्म जो है कहां से चूज करेंगे आप? नॉट गिवन। तो व्हाट टू डू? वी हैव टू एज्यूम। लेट अस टेक, लेट 3 consecutive terms are rth term, r plus 1th term, r plus 12th term। 3 consecutive ले लिया मैंने, r plus 1, r plus 2। अब r का वैल्यू कुछ भी बिठाओ, 3 consecutive terms ही आएगा। r का वैल्यू होगा 3 बिठाओ, 3 4 5 3 4 5 टर्म्स, मतलब कंसेक्यूटिव आए ना। r का वैल्यू 100 बिठाओ, 100 101 102 कंसेक्यूटिव आएगा। गिवन एक्सपेंशन, गिवन 1 plus x whole to the power n, ठीक है। अब देखो, if the 3 consecutive terms of this are in the ratio this, if the coefficients, if यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो, if the coefficients of 3 consecutive terms, ठीक है,
कोफिशिएंट ही निकालना है। अच्छा, अब नाउ टी आर, अर्थ टार निकाल के देखते हैं। टी आर, अब प्लस वन फॉर्म में तो आपको लाना ही है, तो प्लस वन फॉर्म तो है नहीं, सिर्फ आर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो टी देखो तो ऐसे आर माइनस वन लिख लेते हैं, इधर प्लस वन लिख देते हैं, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर तो सिर्फ आर ही रहता है, बट बेनिफिट क्या है, मुझे प्लस वन फॉर्मेशन मिल गया। सो दैट मीन्स एन सी आर माइनस वन, फिर 1 टू द पावर n माइनस आर माइनस वन और x टू द पावर r माइनस वन, ये है टी आर। फिर सेकंड पार्ट टी आर प्लस वन, टी आर प्लस, ये भी देखो ये तो प्लस वन फॉर्म में तो ऑलरेडी है। सो एन सी आर 1 टू द पावर n माइनस आर x टू द पावर r, टी आर प्लस टू, दैट मीन्स टी आर प्लस वन प्लस वन, दैट मीन्स यहाँ पर एन सी आर प्लस वन 1 टू द पावर n माइनस आर प्लस वन x टू द पावर r प्लस वन। So these are the terms, equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Okay? Now according to the question, the coefficients मतलब x का टर्म यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, x का एक्सप्रेशन, ठीक है। coefficients of 3 consecutive terms are in the ratio this, ठीक है। तो coefficients मतलब तीनों में coefficients क्या क्या है, ये और ये। अब बोलोगे सर 1 टू दी पावर, ये भी तो कोफिशिएंट है। अब 1 टू दी पावर दिस, आंसर तो 1 ही है सबका, 1 को आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, 1 तो जरूरत नहीं है। सो लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां से जो है मेन चीज शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन NCR minus 1 is to NCR is to NCR plus 1 equals to 1 is to 7 is to 42, ठीक है। आपको किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है कि नहीं, ठीक है। रेशियो, तीनों का रेशियो सेम। तो यहां पर देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा देख लो तो एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर इक्वल्स टू 1 इज टू 7, दो करके चूज कर रहे हैं। एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 इज टू 42, मतलब ये दोनों ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जूनियर क्लास कॉन्सेप्ट है, लिख सकते हैं। अगर 3 पार्ट ऐसे रेशियो में रहे तो आप लोग 2 करके चूज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बात तो एक ही है, दैट मींस ये फॉर्मेशन आप लिख के रखिए, x इज टू y इज टू z, या अगर 1 इज टू 2 इज टू 3 हो तो आप लोग x इज टू y 1 इज टू 2 लिख सकते हैं, y इज टू z 2 इज टू 3 लिख सकते हैं। तो बात तो एक ही है ना यार, वहां पर एक साथ आपने देख लिया, वहां पर अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है रेशियो को हम लोग डिवाइड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे a इज टू b मतलब है a बाई, ठीक है। देखो एन सी आर माइनस 1 बाई एन सी आर इक्वल्स टू 1/7, वहां पर भी सेम एन सी आर बाई एन सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 7/42। अब और एक कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट और एक मिलेगा, वो भी लिख के रखो, मार्क करके रखो, ये हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू, उसको हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर। ये फॉर्मूला है, ये कॉम्बिनेशन का जो है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन में।
ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इस पे जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा, है कि नहीं। तो हम लोग बार बार करके तो फायदा नहीं है, जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे वहां पर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बट आपको ये याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखो, और क्या है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। देखो स्ट्रक्चर क्या है, NCR, ये NN तो सेम रहना चाहिए, सेम रहेगा, ऊपर जो है R और नीचे जो है R-1, दैट मींस नीचे एक कम होना चाहिए, नीचे जो है एक कम होगा, ठीक है। अच्छा, तो दैट मींस ये स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर हो तो n-r+1/r ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको तोड़ के NCR और NCR-1 उसको तोड़ के देखो, ये आंसर आएगा, कार्डबोर्ड के फैक्टरियल यूज करके करो, देखो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो स्ट्रक्चर तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, किंतु लेकिन यहां पर क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल कर दो, NCR/NCR-1 = 7/1। तो देखो, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया, n-r+1/r = 7, ठीक है। तो यहां पर जो है n-r+1 = 7r, that means n-8r+1 = 0, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब सिमिलरली ये फॉर्मूला यहां पर भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, NCR-1, ये है ना, n-r+1/r। यहां पर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर तो ये है, दैट मींस नीचे जो है एक कम होना चाहिए, बट यहां पर देखो NCR/NCR+1, ठीक है। तो यहां पर NC, अगर मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लूं, ये πNCR = 42π7। तो देखो फॉर्मूला में क्या था, NCR, NC यहां पर क्या है, R+1, दैट मींस R की जगह क्या है, यहां पर R+1 है, R की जगह क्या है, R+1, एक कम है नीचे, दैट मींस R+1 से एक कम, दैट मींस क्या होगा, R होगा, R ही तो है ना नीचे, देखो R-1, दैट मींस R ही नीचे, तो दैट मींस यहां पर R की जगह क्या है, R-1। तो फॉर्मूला जब आप लिखेंगे ये n-r+1/r, तो ये R की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, R+1, सो n-r+1/r+1 = 6, so that means n-r-1+1, that means ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r+6, that means n-7r-6 = 0, ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना, क्या बोला है मैंने, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, फॉर्मूला तो आप किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जैसे a+b², इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अब a और b के जगह कुछ भी हो वही आप लोग बिठाएंगे, है कि यहाँ पर भी सेम है, तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर r के जगह r+1 है, तो यहाँ पर आप भी r के जगह r+1 ही बिठाएंगे, है कि नहीं। फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट वहां पर रिप्लेसमेंट थोड़ा। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके n का वैल्यू निकालेंगे। नाउ फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 क्या है, n इक्वल्स टू, देखो तो 8r-1 लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम 5 n इक्वल्स टू 7r+6 लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो दोनों ही तो n का वैल्यू है, तो कंपेयरिंग मेथड जो है इसको यूज करके 8r-1 = 7r+6, यहां से हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r = आई थिंक 7, r = क्या है 7।
So from 4, n equals to 8 into 7 minus 1, that is n equals to 55. N equals to 55 and r equals to 7. These are the values of n and r. And I think r values, r value was not needed. Okay, this n value equals to 55 is required. Okay, so this here you have got this n equals to 55. So these are the questions from the binomial theorem, and these are that means high level questions. Okay, and we will solve in the next lecture. All the questions will going to be tough and the high level. Okay, so this type of questions will be solved. Okay, but in the advanced level. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही. Till then, stay safe and stay healthy. Okay, bye and Jai. So if you like my videos, then subscribe, like and share my channel also. Okay, thank you very much for joining my classes. Jai.